प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बाय लुकास टेस्ट. ओके, now reaction of alcohol with sodium metal. Alcohol reacts with sodium metals. Sodium alkoxide is formed. This reaction shows the acidic behavior of alcohols. Okay, this hydrogen replaced by sodium. Alcohol reacts with ROH, react with sodium, RONA, sodium alkoxide plus water plus H2. Okay, this is called sodium alkoxide. Similarly, example देते हैं हम ethanol. Ethanol reacts with sodium to give Na plus H2. This is called sodium ethoxide. Sodium ethoxide. Similarly, tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol reacts with sodium. H is replaced by sodium. This compound will be formed. This is the sodium tertiary butoxide and plus H2 gas is released. This reaction shows the acidic behavior of alcohol. Okay. Now come to the next reaction. Reaction with HX, reaction with like this PCl5, phosphorus pentachloride. Okay, alcohol reacts with PCl5 is written like this: PCl3 Cl1Cl, PCl5. That is called phosphorus pentachloride. POCl3 HCl, POCl3 plus HCl plus RCl. Alkyl halide will be formed. Halo compound will be formed. Reaction with SOCl2. That is called thionyl chloride. SOCl2 is known as thionyl chloride. Alcohol ROH plus SOCl2. आपका क्या निकल जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस escapes out and HCl, RCl plus SO2 plus HCl. SO2 गैस के रूप में निकल जाएगा और हैलो अल्केन will be formed. Okay, next reaction. Reaction, dehydration reaction, very important reaction. You are also read in 10th class also dehydration reaction. Okay, what is dehydration reaction? Alcohol is heated with concentrated H2SO4, act as a dehydrating agent. At 443 Kelvin temperature, alkene will be formed. This reaction is known as dehydration reaction. Okay, or this reaction is also called acid catalyzed dehydration reaction because acid used as a catalyst or dehydrating agent in this reaction. So it is called acid catalyzed dehydration reaction. Primary alcohol, ethanol is a primary alcohol heated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin temperature. अब यहाँ पे देख लीजिए वाटर एलिमिनेट हो जाएगा H2O और बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं और H3PO4 भी ले सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का भी हम यूज कर सकते हैं। अब से सेकेंडरी अल्कोहल ले लेंगे CH3, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल
सेकेंडरी अल्कोहल हम ले लेते हैं आपका CH3HOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप है और OH ग्रुप है, CHOH ग्रुप है, इसलिए हमको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। और इट कंपाउंड्स नेम इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। What is the IUPAC name? 1, 2, 3. Propane 2-on is IUPAC name. Okay. Heated with concentrated H2SO4 or H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये अल्फा, ये कार्बन अल्फा का लगेगा, ये कार्बन बीटा का लगेगा, ये कार्बन भी बीटा का लगेगा, बीटा का, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे और उसके नेबरिंग कार्बन जो होगा वो आपको बीटा कार्बन। तो यहाँ से भी H जा सकता है, यहाँ से भी H जा सकता है। तो अब यहाँ से मैंने एक H को डिस्प्लेस कर दूंगा, वाटर निकल गया, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया। और इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेट हो रहा है। तो आपका हो जाएगा H2O और बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये आपका प्रोपीन बन गया। क्या बन गया? ये प्रोपीन बन गया। ओके, टर्सरी में भी होगा। टर्सरी हम लेते हैं तीसरा, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री अल्कोहल। ओके, अब इसका डिहाइड्रेशन करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट 443 कैलोरी या H3PO4 भी ले सकते। इसके लिए बीटा हाइड्रोजन ये हो गया। अब एक हाइड्रोजन को हम यहां से डिस्प्लेस कर देंगे, वाटर एलिमिनेट हो गया। तो आपका क्या बन जाएगा? H2O प्लस CH3, C डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे CH2 CH3। What is name of this compound? 2-methyl propene. 2-methyl propene. Okay, this is the dehydration reaction. अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकेनिज्म पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन तो आता है बोर्ड में, आपको 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में। राइट द मैकेनिज्म ऑफ acid catalyzed dehydration, acid catalyzed dehydration of ethanol to give ethene। ओके, इसका मैकेनिज्म बताना है। अब देखिए मैकेनिज्म में पहले H2SO4 ब्रेक करेगा, H प्लस HSO4 माइनस में। ओके, H2SO4 ब्रेक करेगा। अब यहां पे देखिए H प्लस आयन प्रोटॉन है, वो अल्कोहल से कंबाइन करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। स्टेप फर्स्ट क्या होगा? इथेनॉल, ये इथेनॉल हो गया, H प्लस आयन क्या बन जाएगा? देखिए CH3 CH2 O H प्लस साइन हो गया। अब इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ओके, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अब सेकेंड स्टेप सेकेंड में वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपको? कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेप सेकेंड आपका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। अब देखिए
अब यहां से हम वाटर इलिमिनेट कर देंगे। वाटर इलिमिनेट हो जाएगा, H2O निकल गया और बच जाएगा आपका CH3 CH2 प्लस, इसको बोलेंगे इथाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं? कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं? द कार्बन स्पीशीज कंटेन पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कार्बोकेटाइन। और कार्बन आयन, कार्बन स्पीशीज कंटेन नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड कार्बोनाइन। आपने 11th में पढ़ा होगा इसको। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन स्पीशीज कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल्स। ओके, आपने ये भी पढ़ा होगा टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज आल्सो मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ओके, अब ये देखिए लास्ट में कैसे आप बॉन्ड ये होगा, आप देख लीजिए लास्ट में होगा आपका कार्बोकेटाइन बन गया। और देखिए अब यहाँ स्टेप थर्ड में होगा, स्टेप थर्ड कार्बोकेटाइन है। अब यहां से H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H आयन, H प्लस और यहाँ HSO4 मिलके H प्लस HSO4 मिलके आपका H2SO4 कैटलिस्ट निकल गया। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म पूछेगा कि ये 3 स्टेप आपको लिखना है मैकेनिज्म में, और ये मैकेनिज्म हो गया आपको एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Let us see some conversion. Okay, let us see some conversion. Your NCERT book. Okay. Propene to propane to all. How can you change propene to propane to all? Propene to आपको बनाना है propane to all, कैसे करें बताइए? तो देखिए इसको हम 2 तरीके से कर लेते हैं। पहले तो हम मार्कोनिकॉव्स रूल से प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाएंगे और उसके बाद KOH एक्वस कर देंगे तो प्रोपेनॉल बन जाएगा, अल्कोहल से बन जाएगा। आपका देख लीजिए प्रोपीन है, अब यहाँ पे HBr से हम रिएक्ट करेंगे, H प्लस Br माइनस, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉव्स रूल, M रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल, डू यू नो मार्कोनिकॉव्स रूल? Markovnikov's rule said that negative part is attached to that carbon which contains less number of hydrogen atom, and positive part is attached to that carbon atom which contains more number of hydrogen atom. This is called Markovnikov's rule. तो Br माइनस नेगेटिव पार्ट है एडिंग मॉलिक्यूल कहाँ पे जाएगा? इस हाइड्रोजन कार्बन पे जाएगा और H किस पे जाएगा? इस पे जाएगा। तो आपका बन जाएगा आपका CH3 CH Br CH3, ये बन गया आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब 2 ब्रोमोप्रोपेन से अल्कोहल बनाना है तो हमको क्या करना है? KOH एक्वस से कर देंगे तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, CH3 CHBr CH3 प्लस KOH एक्वस, आपको KBr निकल जाएगा यहां से और OH ग्रुप लग जाएगा Br की जगह पे, CH3 CHOH CH3 प्लस KBr, आपका बन जाएगा आपका ये प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल बन गया। और इससे भी हम एक स्टेप में भी बना सकते हैं, सीधे हाइड्रेशन कर दीजिए। ये तो मान लिया जब आपका ये पहला हो गया, अब दूसरा मेथड से भी एक कन्वर्जन 2 से 3 मेथड से भी बनाया जा सकता है। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई में आप देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या करना है आपको? सबसे शॉर्टेस्ट रूट चलना है। कन्वर्जन का मतलब है ज्यादा से मैक्सिमम 3 स्टेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 स्टेप से ज्यादा होगा तो फिर वो मार्क्स आपको टाइम भी वेस्ट होगा और मार्क्स आपको उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए इसको हम एक ही स्टेप में करते हैं।
प्रोपीन है, उसको वाटर से रिएक्ट करेंगे, हाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे, एसिड ले लेते हैं कैटलिस्ट। अब यहाँ पे देखिए वाटर को हम लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस, वाटर लिख सकते हैं। अब H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव पार्ट है, तो OH प्लस की OH माइनस कहाँ पे जाएगा, जिस कार्बन पे लेस नंबर है यहाँ चला जाएगा, और H विल भी यहाँ चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CHOH CH3, डायरेक्ट वन स्टेप में इसको। ओके, अब जैसे बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ये कन्वर्जन है, बेंजाइल क्लोराइड है, इसे बेंजाइल अल्कोहल सीधे डायरेक्ट KO चेक को लगाओ आंख मूंद के, KCl निकल जाएगा और डायरेक्ट बन गया आपका बेंजाइल। समझ गए? अगर मान लिया प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है तो हम उसमें क्या करेंगे, वहां पे हमने मार्कोनिक की जगह पे एंटी मार्कोनिक शुरू लगाएंगे, तो एंटी मार्कोनिक में पैरोक्साइड हम ऐड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, निगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा, मोर नंबर पे चला जाएगा और पॉजिटिव पार्ट लेस नंबर पे जाएगा, तो आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, और 1 ब्रोमोप्रोपेन को KH एक्वस से करेंगे तो प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। ओके, तो ये आपका कन्वर्जन का ये सब तरीका, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर जो है आप नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट आगे का रिएक्शन बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।